वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू अनदर सेशन ऑन लॉगरिदम्स। स्टार्ट करते हैं सेशन को। एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल एंड यू लाइकिंग द कंटेंट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू इट एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन. You can also message me on Telegram at ADITYAKT. I will also pin the link of WhatsApp channel in the description and in the comment obviously. Okay, so we've done the properties of logarithms. Now there is another important property which will help you. A to the power log of b on the base c, that is also equal to b to the power log of a on the base c. अगेन याद रखने की जरूरत नहीं, समझ लेना है, समझ लोगे वैसे ही याद हो जाएगा. ठीक है. सो ए टू द पावर लॉग ऑफ बी ऑन द बेस सी, यहाँ पे क्या हुआ, ए और बी एक दूसरे से रिप्लेस हो गए, स्वैप हो गए. So a to the power log of b on base c is equal to b to the power log of a on the base c. Now, how can we understand that these two should be true? Now let us assume that this value is equal to x. Log of b on the base c is equal to x, and if that is so, then c to the power x will be equal to b. This will imply that c to the power x is equal to b. Isn't it so? Again, c to the power x will be equal to b, and if c to the power x is equal to b, then put कर दो b की जगह c to the power x. So this expression will become b to the power log of a on the base c था. So this will be c to the power x, b की जगह c to the power x आ गया, c to the power x into c to the power x to the power log of a on the base c. So this will be equal to c to the power x times log of a on the base c. Now x can be written as a to the power x. ठीक है. तो c to the power log of a to the power x on the base c, कोई प्रॉब्लम इसमें. और जैसे ही ये वैल्यू लिख दिया तो नाउ वी नो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग दैट दिस विल बी इक्वल टू a to the power x, दिस विल बी इक्वल टू a to the power x, और a to the power x ही तो लिखा हुआ था इनिशियल. क्लियर? ठीक है. ओके. सो फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज गिवन दैट, एक एग्जाम्पल ले लें तो ट्वेंटी फाइव टू द पावर log of 17 on base 5. This expression is given. So we can write that this will be equal to 17 to the power log of 25 on base 5. अब ये इजी हो गया बिकॉज नाउ वी नो log of 25 on the base 5 क्या होगा, 5 का स्क्वायर है 25, तो 17 स्क्वायर हो जाएगा, रिजल्ट विल बी 289. क्लियर? ओके. Now let us say in some question we come across a result that log of a on the base m, this is equal to log of b on the base m. Log of a on the base m, that is equal to log of b on the base n. Now there will be two cases. ठीक है. if m is equal to n, पहला केस है कि if m is equal to n, यानी कि if base values are equal, if base values are equal, if m is equal to n, then definitely a will be equal to b. If base values are equal, then argument will also be equal. This is our first case. ठीक है. If log of a on the base m is equal to log of b on the base n, so if bases are equal, m और n equal है, base हमारा equal है, तो definitely a is equal to b हो जाएगा. But second case is when a is equal to b. So if a is equal to b, यहां पे दो केसेस बनेंगे हमारे, दो बातें ध्यान रखनी है. देखो, फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज दैट मे बी a is equal to b but they both are equal to 1. Because if they both are equal to 1, then irrespective of कि m क्या है, n क्या है, we know that log of 1 is always 0. ठीक है. So log of 1 is always 0 irrespective of whatever the value base is. Base 10 होगा तो भी 0 होगा, बेस 100 होगा तो भी 0 होगा, यानी कि बेस शुड नॉट बी, नीड नॉट बी इक्वल. सो इफ a and b are equal to 1, then m and n can be any value, can take any value, can be any value. ठीक है. we cannot compare them. But if they are not equal to 1, ठीक है, a is equal to b but not equal to 1,
in that case definitely m will be equal to n. Okay, again you do not need to remember it, you need to understand it. ठीक है, बिकॉज जब अप्लाई करना होगा तो वहां पे अंडरस्टैंडिंग काम आएगा, याद रखने से काम नहीं चलेगा. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इफ a and b are equal, then if they are 1, then m and n may not be equal, but if they are not equal to 1, then definitely m will be equal to n. Clear? Okay, fine. Now let us say we take log base 10 ही लेंगे इन जनरल. ठीक है, सो log ऑफ 1 क्या होगा? log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, और बेस मेंशन नहीं यानी कि बेस 10 होगा. ठीक है, log ऑफ 10, log ऑफ 10 विल बी इक्वल टू 1. log of 100, 100 is 10 square, so log of 100 is equal to 2. log of 1000, this is equal to 3, and so on and so forth. Okay, now between log of 1 and log of 10, log of 1 is 0, log of 10 is 1. Now if we take log of 5, now definitely 5 is between 1 and 10, 5 1 और 10 के बीच में है, तो log of 5 will be between 0 and 1, between 0 and 1. और in general any number which is between 1 and 10 will have a log value which is between 0 and 1, है कि नहीं? तो अगर हम 1 से स्टार्ट करें, 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स का लॉग वैल्यू चेक करें, तो लॉग वैल्यू ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 and 9 दैट विल बी इन द रेंज बिटवीन 0 and 1. और 1 का लॉग 0 होगा तो 0 पे इक्वालिटी रहेगा बिटवीन 0 and 1. ठीक है, 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए फॉर 2 and 9 इट विल बी बिटवीन 0 and 1. इज दैट क्लियर? सिमिलरली बाय द सेम लॉजिक 10 से लेके 99 तक के नंबर्स के लिए इफ वी टेक एनी वैल्यू, फॉर एग्जांपल वी टेक log of 70, तो log of 70 will be greater than 1 but less than 2, so it will be between 1 and 2. So for numbers from 10 to 99, the log value will be between 1 and 2. Now 1 to 9, these are one digit numbers with only one digit, और अगर नंबर्स में डिजिट सिर्फ एक है तो उनका log value will be between 0 and 1. log value will be between 0 and 1. और अगर नंबर्स में डिजिट 2 है, बिकॉज 10 से 99 तक है, सारे के सारे नंबर्स क्या है? 2 डिजिट नंबर्स है, ऑल द 2 डिजिट नंबर्स. इससे जैसे ही कम करते हैं तो सिंगल डिजिट हो जाएगा, जैसे ही बढ़ाओगे तो 3 डिजिट्स हो जाएगा. तो ऑल द 2 डिजिट नंबर्स विल हैव देयर लॉग वैल्यू बिटवीन 1 and 2. इज दैट क्लियर? सिमिलरली बिटवीन द नंबर्स फ्रॉम 100 to 999, basically all the 3 digit numbers will have their log values between 2 and 3. Now from here we can observe a very important point, and that point is कि if for example let us say we take some number n, log of n, and that number, log of that number comes out to be 1.203. log of that number, एक random value लिया हमने, log of that number comes out to be 1.203. so that number lies, log value lies between 1 and 2. So definitely that number will be between 10 and 99. इंटीजर होना जरूरी नहीं है बिकॉज हमने रैंडम वैल्यू लिया है, बट डेफिनेटली दैट नंबर विल बी बिटवीन 10 and 99. क्या ये पार्ट क्लियर है? क्योंकि अगर ये पार्ट क्लियर हो जाता है तो यहाँ से एक छोटी सी बात है जो हमें समझनी है कि फोकस ऑन दिस नंबर, ठीक है. सो इफ दिस नंबर इज इक्वल टू 1, और नंबर हमारा क्या है? n विल बी 2 डिजिट नंबर बिकॉज n इज बिटवीन 10 and 99. ठीक है, लॉग वैल्यू हमारी 1 से लेकर 2 के बीच में है, दैट इज वाई n विल बी अ 2 डिजिट नंबर. ओके, और n 2 डिजिट नंबर हमारा कब आ रहा है? जबकि जो इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉग वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक. टेंशन मत लेना, ये सारी बातें समझ में आएंगी, बस अगले 10-15 मिनट फोकस कर लेना. ठीक है, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं, बस समझ लेने की जरूरत है. तो कैरेक्टरिस्टिक है हमारा जो इंटीग्रल पार्ट है इस वैल्यू का, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक. सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ डिजिट्स, अगर हमारा नंबर 1 से बड़ा है, ठीक है, अभी हम 1 से बड़े नंबर्स की ही बात कर रहे हैं. सो इफ नंबर n इज ग्रेटर देन 1, इन जनरल इफ n इज ग्रेटर देन 1, देन नंबर ऑफ डिजिट्स इन n विल बी इक्वल टू, कैरेक्टरिस्टिक को शॉर्ट में C लिख देते हैं, विल बी इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1. इफ n इज ग्रेटर देन 1, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर विल बी इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू प्लस 1. ठीक है, बेसिकली लॉग हमारा पहले वाले केस में अगर ऑब्जर्व करें, अगर हमें लॉग दिया है, लेट अस से ये n1 था,
अब नेक्स्ट नंबर लेते हैं log of n2. Log of n2 is 0.301. Now this log value is between 0 and 1. Between 0 and 1. So अगर log value between 0 and 1 आ रही है तो definitely number will be a single digit number. और characteristic कितना है? 0 है. So number of digits कितना हो गया? 0 plus 1. Number of digits is 0 plus 1 which is equal to 1. Another number is there, log of n3 ले रहे हैं और रिजल्ट आ रहा है हमारा 5.642. 5.642. ओके, तो 5.642 द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू द इंटीग्रल पार्ट हियर इज बिटवीन 5 and 6. पूरा नंबर हमारा 5 and 6 के बीच में है और इंटीग्रल पार्ट इज 5. सो इंटीग्रल पार्ट इज 5, नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी 5 plus 1 which is equal to 6. So number of digits in this case will be equal to 6 only. Okay. और नंबर ऑफ डिजिट्स 6 होने का मतलब क्या हुआ कि दिस नंबर विल बी स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है हमारा 1 फॉलोड बाय 5 zeros. दिस इज स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट होगा 6 9s. So the number will be between these two numbers. N3 will be between these two numbers. Isn't it so? क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, यहां तक बात समझ में आ रही? तो इन जनरल किसी भी नंबर के लिए विच इज ग्रेटर देन 1, नंबर ऑफ डिजिट्स इन n विल बी कैरेक्टरिस्टिक +1 और इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉग वैल्यू +1. अब यहां पे एक छोटी सी चीज को और समझते हैं. लेट अस से वी टेक log of 2. Log of 2 is equal to 0.301 and we take log of 20. Log of 20 क्या होगा? Log of 20 will be log of 2 into 10. 20 is 2 into 10. So this will be equal to log of 2 plus log of 10. Okay. So log of 10 is equal to 1. Log of 2 is 0.301. So this will be 1.3010. Now if we take log of 200, this is 2 into 100. So this will be equal to log of 2 plus log of 100. Now log of 2 is 0.301, log of 100 is equal to 2. So result will be 2.301. Now can you focus on the part after decimal? ठीक, in these cases 220, 200, the part after the decimal value is exactly same. क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स हमारी बढ़ रही हैं, दैट इज वाई जो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है, जो इंटीग्रल पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट केस में 0 है क्योंकि सिंगल डिजिट है, सेकंड केस में 1 है बिकॉज 2 डिजिट्स है, थर्ड केस में 2 है बिकॉज 3 डिजिट्स है हमारे पास. तो ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक पार्ट और इंटीग्रल पार्ट +1 इज नंबर ऑफ डिजिट्स, इजंट इट सो? बट मैंटिसा द पार्ट आफ्टर डेसिमल विच इज कॉल्ड मैंटिसा, ये तो सेम है, ये तो सेम है. सो एज लॉन्ग एज अवर नंबर रिमेन सेम, नंबर रिमेन सेम से मतलब ये हुआ कि एज लॉन्ग एज द, क्या कहा जाए इसको, कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है हमारा, ठीक है, दिस इज 10 to the power समथिंग इनटू दैट वैल्यू से, ठीक है. सेकंड केस में है 20, थर्ड केस में है 200 एंड सो ऑन. सो डेफिनेटली इन दी ऑल दीज केसेस, फर्स्ट केस में हमारा लॉग ले रहे हैं 2 का, सेकंड केस में वी आर टेकिंग log of 2 प्लस log of 10 इन द पावर 10 और 200 2 into 100, ठीक है. सो डेफिनेटली log of 2 तो सेम ही रहेगा हर एक केस में और वही हमारा मैंटिसा का पार्ट प्ले कर रहा है, वही तो मैंटिसा का पार्ट प्ले कर रहा है. क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? इजंट इट सो? तो यहां से वी कैन जनरलाइज दैट मैंटिसा, ठीक है, मैंटिसा इज सेम मैंटिसा इज सेम फॉर ऑल द नंबर्स which have same significant digits in the same order. फर्क सिर्फ इसका आया, कैरेक्टरिस्टिक का फर्क आया, ठीक है. सो इफ लॉग वैल्यू ऑफ एनी नंबर n is equal to, let us say 2.54, then this 2 part is called characteristic, जो कि हेल्प करता है हमें नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने में, एंड दिस 0.4, दिस पार्ट इज कॉल्ड मैंटिसा. और अभी तक हमने ग्रेटर देन 1 वैल्यूज की ही बात की है, अब हम लेस देन 1 वाली वैल्यूज के लिए भी बात करते हैं, ठीक है. सो log ऑफ 220 है तो हमने देख लिया, ठीक है. सो log ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.301.
नाउ लेट अस टेक log ऑफ 0.2, log of 0.2, और 0.2 क्या है, दिस इज 2 डिवाइडेड बाई 10, सो वी कैन राइट दिस वैल्यू एज log of 2 माइनस log of 10. अगेन वी नो log of 2 तो सेम वैल्यू आएगा 0.301, log of 10 की वजह से 1 सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से, तो रिजल्ट विल बी 0.301 माइनस 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 0.699 निगेटिव साइन के साथ में. बट दिस इज ऑल्सो रिटर्न एज, ध्यान से समझना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल पार्ट पे फोकस करो, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे -1 आएगा, सो 1 -1 1 के ऊपर बार लगा दिया और 0.301. ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट जो फर्स्ट पार्ट है हमारे डेसिमल से पहले, दैट इज -1 और प्लस 0.301. ठीक है, सो दिस -1 इज ऑल्सो रिटर्न एज दिस वैल्यू, 1 के ऊपर बार लगा के भी इसको लिखा जाता है. ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, सो इन सच केसेस जब भी हम वैल्यूज लिखेंगे और क्वेश्चन पूछे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो दिस विल बी कैरेक्टरिस्टिक. जो पहला वाला केस है, ये लॉग की वैल्यू तो ठीक है, लॉग का वैल्यू विल बी -0.699. ठीक है, बट कैरेक्टरिस्टिक विल नॉट बी 0, कैरेक्टरिस्टिक विल बी -1, बिकॉज मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. किसी भी क्वेश्चन में जब भी हम लॉग वैल्यू निकालेंगे तो मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकालेंगे, और -0.699 में प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे मेंटिसा हमारा नेगेटिव हो जा रहा है. दैट इज वाई हमें मेंटिसा को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो लेट अस से हमें कहीं पे दिया है लॉग वैल्यू ऑफ सम नंबर, log of x लेट अस से इज इक्वल टू -1.24. सो यहाँ पे मेंटिसा निगेटिव है, तो सबसे पहले मेंटिसा को हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा. ठीक है, मेंटिसा को हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा. तो कैसे पॉजिटिव करेंगे, अभी ये आ रहा है -1.24. ठीक है, सो इसको हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा. दिस इज इक्वल टू -1 प्लस -0.24. Isn't that so? So if we add +1 here and subtract -1, so effectively this becomes -1 -2 plus this will be 0.76. Now this meantisa is positive, so result will be 2 के ऊपर बार लगा देंगे 0.76. This value will be value of the log. ठीक है, this is also equal to -1.24, बट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हमारा 2 है, -2 है, और मेंटिसा इज 0.76, मेंटिसा इज 0.76. ओके, सो log ऑफ 0.2 हमें निकालना है, तो हमने क्या किया, 2 के बाद में 2 डिवाइडेड बाई 10 है, सो log ऑफ 2 इज 0.301, सो log ऑफ 0.2 विल बी 1 बार 0.301. ठीक है, पैटर्न देख लो, सो log ऑफ 2 इज 0.301, log ऑफ 0.2 विल बी 1 बार यानी -1 0.301. ठीक है, log ऑफ 0.02 विल बी 2 बार विच इज -2 एंड 0.301. ठीक है, बट अगर एक्चुअल वैल्यू हमें निकालना होगा लॉग का, तो ये वैल्यू क्या होगा, दिस विल बी -2 प्लस 0.301. सो हेंस द रिजल्ट विल बी -1.699. ओके, इज दैट पार्ट क्लियर? नाउ फोकस ऑन, लेट अस से पहले एक और लॉग वैल्यू लिखते हैं 0.0002. ठीक है, कितने जीरो एक्स्ट्रा हो गए, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज इज 1, हियर नंबर ऑफ जीरोज इज 3, और कैरेक्टरिस्टिक इज 2 बार, सो हियर कैरेक्टरिस्टिक विल बी 4 बार 0.301, which is also equal to -3.699. Okay. Now if we have been given the value of characteristic, or we need to find out the value of characteristic, तो characteristic और number of zeros after decimal को चेक करो. ठीक है, before first significant digit, after the decimal, before first significant digit, number of zeros पे फोकस करो. तो in this case number of zeros is 1, characteristic is 2, here number of zeros is 0 after decimal. ठीक है, आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ जीरोस कितना है, नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, दैट इज इक्वल टू 0, और हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है 1. यहां पे नंबर ऑफ जीरोस इज 3, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 4. सो कैरेक्टरिस्टिक इन केस ऑफ इफ नंबर इज लेस देन 1, ऑब्वियसली 0 से तो बड़ा ही होगा, बिकॉज पॉजिटिव नंबर्स के लिए लॉग डिफाइंड है. सो इफ नंबर इज बिटवीन 0 एंड 1, देन कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट and before first significant digit, before first significant digit +1 +1. ओके, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं. लेट अस से वी आर टेकिंग log ऑफ 0.000000
32. ओके, सो नंबर ऑफ जीरोस कितना है? 1 2 3 4 5 6. सो कैरेक्टरिस्टिक विल बी 7 बार. 7 बार, isn't it so? बट इफ वी नीड टू कैलकुलेट लॉग वैल्यू तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो प्रोसेस भी समझ लेते हैं. ठीक है, सो वी कैन राइट दिस वैल्यू एज लॉग ऑफ 32 डिवाइडेड बाई, कितने डेसिमल के बाद में डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, सो 32 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 8. सो दिस कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ 32 माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर 8. लॉग ऑफ 32 क्या है? 32 2 टू द पावर 5 है. सो वी कैन राइट दिस एज इक्वल टू 5 टाइम्स लॉग ऑफ 2, और log of 10 to the power 8 तो 8 ही आ जाएगा. log 2 is 0.301, so 5 times 0.301 minus 8, so this would be 1.505 minus 8, so result will be 6.495 minus 6.495 will be the result. ठीक है, बट अगर इसको कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा वाले पार्ट में लिखेंगे तो -6 के बजाय हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे +1 -1 करेंगे सो दैट हमारा मैंटिसा पॉजिटिव हो जाए. Isn't it so? Clear? So in that case the value will be 7 bar 0.505, यानी कि -7 plus 0.505. Okay, is that clear? क्या बात समझ में आती है? ठीक है, और ये ऐसे भी समझ सकते हो कि इंस्टेड हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज लॉग ऑफ 3.2 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 7. So that value will be log of 3.2 minus log of 10 to the power 7. तब ये चीज़ ज़्यादा बेटर समझ पाओगे कि यहाँ पे हमने अल्टीमेटली क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट लिया डेसिमल से पहले, यानी 3.2 लिया. ठीक है, बट बात एक ही है, किसी भी तरह से कैलकुलेट करो लॉग की वैल्यू तो हमारी निकल आएगी. कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा वाले केस में कंफ्यूजन नहीं हो तो उसके लिए उसको सेपरेटली समझना है. ठीक है, लॉग तो कैसे भी निकाल लेंगे, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे समझेंगे कि लॉग निकालने के तो एक ही क्वेश्चन के लिए मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, और तुम्हें किसी भी तरह से, जिस तरह से तुम मोस्ट कंफर्टेबल हो वैसे ही लॉग की वैल्यू निकालोगे. चलो क्वेश्चंस करते हैं आप. फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द डोमेन ऑफ द गिवन लॉग वैल्यूज. ठीक है, तो गिवन लॉग एक्सप्रेशंस का हमें डोमेन निकालना है. डोमेन मतलब कि वैल्यू ऑफ एक्स, बिकॉज एक्स की वैल्यूज हमें यहां पे पुट करनी है. सो वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच log is defined, for which log is defined, and we know that if we have to define log of b on the base a, then both a and b should be positive. A should be greater than 0, b should be greater than 0, also base should not be equal to 1. So this is the basic definition. बस यही काम करना है हर एक क्वेश्चन में. So in the first question 2x plus 5 should be positive, x plus 1 should also be positive, and base x plus 1 should not be equal to 1. So if 2x plus 5 has to be positive greater than 0, so 2x should be greater than -5, x should be greater than -5 by 2. X plus 1 greater than 0, so x should be greater than -1, and x plus 1 not equal to 1, that implies x should not be equal to 0. तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी x should be greater than -5 by 2, x should also be greater than -1, तो -1 से भी बड़ा होना है, -5/2 से भी बड़ा होना है, तो अगर -1 से बड़ा होगा तो -5/2 से बड़ा तो होगा ही होगा. So that implies x should be greater than -1 and not equal to 0. So result will be x should be greater than -1 but not equal to 0. ठीक है, -1 से बड़ा होना है बट 0 नहीं होना है. So x can be between -1 and 0, union from 0 to infinity. Okay, क्लियर. सो डोमेन आ गया हमारा, x शुड बी बिटवीन -1 to 0 और 0 to infinity, दोनों चलेगा, दोनों में से किसी भी पार्ट में होगा, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, log of x plus 2 on the base 1 minus x. So x plus 2 should be positive greater than 0. 1 minus x should also be positive, and 1 minus x should not be equal to 1. So x plus 2 पॉजिटिव होना है, ग्रेटर देन 0 होना है, so x should be greater than -2. 1 minus x को भी पॉजिटिव होना है, यानी कि x should be less than 1. x लेस देन 1 होगा तभी पॉजिटिव होगा 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स को नॉट इक्वल टू 1 होना है, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 0. सो x शुड बी ग्रेटर देन -2 बट लेस देन 1 बट नॉट इक्वल टू 0. ग्रेटर देन -2 लेस देन 1 बट नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, सो x शुड बी बिटवीन -2 to 0
और फ्रॉम 0 to 1। ना तो -2 इंक्लूडेड होगा, ना 0 इंक्लूडेड होगा, ना ही 1 इंक्लूडेड होगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट वन, लास्ट वन। सो x plus 3 should be positive greater than 0. X minus 5 should also be positive, and x minus 5 should not be equal to 1. So x should be greater than -3, x should be greater than 5 as well, and x should not be equal to 6. x should be greater than -3 as well as 5, यानी कि 5 से बड़ा होना चाहिए और not be equal to 6. तो x should be element of from 5 to 6 or from 6 to infinity. That should be the domain value. क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So if to simplify log of 225 minus log of 12 cube plus 2 times log of 16 minus 3 times log of 5. So log of 225 minus log of 12 cube plus 2 times log of 16 minus 3 times log of 5. So this will be equal to log of 225, which is 15 square, minus log of 12 cube plus log of 16 square minus log of 5 cube. अब जो वैल्यूज प्लस में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो माइनस में वो डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन कैलकुलेटेड है log of 15 स्क्वायर विच इज 15 इंटू 15 माइनस 12 क्यूब यानी कि डिवाइडेड बाई 12 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 16 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 क्यूब। ओके, 3 रिमेनिंग बचा, 5 से 3 बचा, एक 5 बच गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे सिमिलरली 4 3s are 12, 4 4s are 16, अगेन 4 3s are 12, 4 4s are 16, and again इस 4 से कैंसिल आउट होगा, 3 will be remaining. Now these 3 will be cancelled out from these 3s. So the result will be log of 4 divided by 15, log of 4 by 15, or that can also be written as log of 4 minus log of 15, whichever way the question will be asking. Okay, or we can also write this as 2 times log of 2, because 4 is 2 square, minus log of 3 minus log of 5. Next question. Solve for x if x satisfies the following equation: 2 times b to the power 5 times log of x on the base b, that is equal to 486. This is equal to 486. अब we can see that the base is b, ठीक है, और base log का भी b है। तो somehow अगर हम डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये 5 प्रॉब्लम दे रहा है हमको। सो वी कैन राइट दिस एज 2 टाइम्स b to the power, this is 5 into log of x on the base b, तो log of x on the base b को इनसाइड द ब्रैकेट ले आते हैं टू द होल पावर 5, कोई दिक्कत, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, एंड दैट इज इक्वल टू 486। और जैसे ही लिख दिया इस तरह से तो काम खत्म हो गया। ये क्वेश्चन क्या बन गया, ये एक्सप्रेशन बन गया b to the power log of x on the base b, which is equal to x only. So 2 times x to the power 5 is equal to 486. So x to the power 5 will be equal to 243, and hence x will be equal to 3 only, because 243 is 3 to power 5. ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। If x to the power log of 16 on the base 12 is equal to 64, then find the value of x. If x to the power log of 16 on the base 12 that is equal to 64, then we have to find the value of x. Okay. So x to the power log of 16 on the base 12, this is equal to 64. Now we know 16 is 4 squared, 64 is 4 cube. बट अगर बेस में आ रहा होता तो हम चीजों को बेटर कंपेयर कर पाते, तो 16 को हमें समाउ यहां बेस पे लाना है, इस बेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इस प्लेस पे लाना है, कैसे करेंगे? सो दिस प्रॉपर्टी दैट a टाइम्स log ऑफ b, a टू द पावर log b इज इक्वल टू b टू द पावर log a, जहां पे कि बेस कोई भी अदर वैल्यू है, ठीक है। सो कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वी कैन राइट दिस वैल्यू एज 16 टू द पावर log ऑफ x ऑन द बेस 12, दैट इज इक्वल टू 64. नाउ वी कैन राइट 16 एज 4 स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर टू द पावर log of x on the base 12 is equal to 4 cube. 4 cube, this is 4 to the power 2 times log of x on the base 12, which is equal to 3. So क्योंकि बेसेस इक्वल है तो पावर्स भी इक्वल होगा, इक्वेट कर देते हैं इनको।
So 2 times log of x on the base 12, that is equal to 3. ठीक है, दिस विल बिकम 2, यहां से रिमूव करके एक्स स्क्वायर कर सकते हो. सो 12 क्यूब विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर. और x will be equal to 12 to the power 3 by 2. So x will be equal to 12 to the power 3 by 2. Or we can write this as 12 can be written as 2 square into 3 to the power 1 to the power 3 by 2. So 2 square into 3 by 2, 2 into 3 by 2, यानी कि 2 cube into 3 to the power 3 by 2. That will be the answer. That could also be the answer. मतलब आंसर को रिटर्न करने का ये भी फॉर्मेट है. 2 cube is 8 और 3 to the power 3 by 2 हो जाएगा 3 to the power 1 into 3 to the power half. ठीक है भाई, ये हम लिख सकते हैं, एक सेकेंड, इसको सेपरेटली लिख सकते हैं. 2 क्यूब into 3 to the power 3 by 2. 2 cube is 8. 3 to the power 3 by 2 will be 3 to the power 1 into 3 to the power half. So 8 into 3 is 24. 24 root 3 will be the answer. Okay. क्लियर है? सो इतना ही रखते हैं सेशन में. आई बिलीव सेशन में जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया, जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस, कैरेक्टरिस्टिक मैंडिसा वाला जो भी पार्ट डिस्कस किया और नंबर ऑफ डिजिट्स के केस में डिस्कस किया, वो क्वेश्चन समझ में आएंगे. नेक्स्ट सेशन में वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस ऑन नंबर ऑफ डिजिट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स. That's all for this session. Bye bye. Take care. And if you like the session, then make sure to like the session. Press the like button as well. That's all. Bye bye. Take care. Keep learning.